Hello and welcome back to this channel. Dear students, today's topic is amplitude modulation, that is AM, which is the topic from the subject Principles of Communication Systems PCS for second year ENTC students. I will explain you the basic things, basic questions related to amplitude modulation from exam point of view, as well as we will derive some important relationships, some important derivations. So first part is, what is a modulation? I will explain this definition. It is the process of changing the characteristics of wave to be transmitted by superimposing message signal on high frequency signal. Now what is this? ऐसे आप एज्यूम कर लो कि यू वांट टू गो फ्रॉम पुणे टू मुंबई, आपको बॉम्बे जाना है, तो यू विल लेट अस से यू विल प्रेफर अ बस, तो आप बस से ट्रैवल करोगे. कंसिडर यू एज अ मैसेज सिग्नल. जो जिस बस से आप ट्रैवल कर रहे हो, बस को कैरियर बोलेंगे. सो दिस इज मिक्सिंग ऑफ मैसेज विद द कैरियर सिग्नल. क्वेश्चन arises why it is required. From the exam point of view, the question can be like this: what is the modulation? I have written the definition, and you should also include few points like this. This is the definition, means in very simple language. लिखना कैसे है कि मैसेज सिग्नल, जिसको इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं, वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है. इट कैनॉट ट्रैवल अ लार्जर डिस्टेंस, इसलिए हम उस सिग्नल को किसी और ज्यादा फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ मिक्सअप करेंगे. दिस इज नोन एज सुपर इम्पोजिशन, and this process is called modulation. After this you need to write some advantages of modulation, like why the modulation is required and all that. I will explain all these points. Another question is differentiate or compare baseband communication and carrier communication. Dear students, in the earlier video I have explained you the concept of baseband communication. सिंपल याद रखना है, बेसबैंड कम्युनिकेशन मतलब कैरियर हम यूज नहीं कर रहे, जो सिग्नल है वो एज इट इज ट्रांसफर कर रहे हैं. कैरियर कम्युनिकेशन मीन्स, जैसे मैंने अभी शॉर्ट में बताया, यू हैव सम मैसेज सिग्नल और इंफॉर्मेशन, उसको किसी और ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ मिक्सअप करना है, सुपर इम्पोजिशन करना है, सो दैट द सिग्नल कैन ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस, जिसको बोलते हैं कैरियर कम्युनिकेशन. नाउ दिस चार्ट शोज यू द कंपैरिजन बिटवीन द टू. एक चार्ट आप प्रिपेयर करोगे तो आपके 2-3 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे. कैसे? आई विल एक्सप्लेन इट. सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस द कंपैरिजन. फर्स्ट पार्ट इज इन बेसबैंड कम्युनिकेशन. ऐसे याद रखना है, बेसबैंड मतलब डायरेक्टली सिग्नल सेंड करना है, कैरियर मतलब कैरियर के साथ मिक्स करके सिग्नल सेंड करना है. सो इट इज विदाउट मॉड्यूलेशन. कैरियर कम्युनिकेशन इज विथ मॉड्यूलेशन. मिक्सिंग ऑफ सिग्नल विथ कैरियर इज नोन एज मॉड्यूलेशन. सेकंड पॉइंट इज transmission medium is always wired, मतलब like coaxial cable, like fiber optic cable. So एक वायर होना चाहिए जिसके थ्रू, only through that medium signal can transmit. In this case, in case of carrier communication, transmission medium can be wired or wireless. Very common examples are radio waves communication, that is AM waves communication, television signal transmission, satellite signal transmission. All these are wireless signals. Then there is third point is there is no frequency shift, because we are not using carrier use करेंगे तभी frequency shift होगा. In this case, then since you are using carrier, frequency shift takes place. Fourth point is interference of signal, because again the same reason, we are not using carrier. So if you want to transmit 2 or 3 signals simultaneously, then mixing of signals can take place. In this case, you can manage टू ट्रांसमिट 2 और मोर सिग्नल्स एट अ टाइम, और हम लोग अलग अलग कैरियर यूज करेंगे. सो इंटरफेरेंस मतलब मिक्सिंग अवॉइड कर सकते हो. एडवांटेजेस, इट इज हैविंग लोअर बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट. बैंडविड्थ मतलब रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, लोअर बैंडविड्थ इज द रिक्वायरमेंट. इसके एडवांटेजेस है रिड्यूसेस हाइट ऑफ एंटीना. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज. So what I was talking about, जैसे ये मॉड्यूलेशन, ये क्वेश्चन पूछा, what is modulation? You will be writing this definition as well as without fail mention some advantages, like it reduces height of antenna. How? See, in case of in the latter subject you will be actually studying all these things. Presently, any height of antenna is like this, lambda by 2 or lambda by 4. इसको बोलते हैं half wavelength antenna, quarter wavelength antenna, and so on. Forget about the names. It is in terms of lambda. We know that lambda is
this is the height of antenna. Let us say h. Similarly, h can be lambda by 4. We know that lambda is a wavelength which is related to speed of velocity c and frequency f as lambda is c by f. C is speed of light which is fixed 3 into 10 raised to 8 meters per second. F is the frequency of operation. If it is a baseband signal, frequency of operation is low. अब देखो lambda is c by f, मतलब lambda is inversely proportional to f. तो बेसबैंड के केस में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कम रहता है. दैट मीन्स इट इज 1 बाई एफ. सो लैम्बडा की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है. तो लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 4 जो हाइट कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं उसका भी रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा. सो द पॉइंट इज दैट इफ यू आर नॉट यूजिंग कैरियर, मतलब आप सिर्फ बेसबैंड कम्युनिकेशन यूज कर रहे हो, देन हाइट ऑफ एंटीना रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस. सेकेंड एडवांटेज इज मल्टीप्लेक्सिंग कैन बी डन. मल्टीप्लेक्सिंग मतलब एक साथ बहुत सारे सिग्नल्स हम ट्रांसमिट कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज मल्टीप्लेक्सिंग एंड इट इंक्रीजेस रेंज ऑफ कम्युनिकेशन. मतलब यू कैन ट्रांसमिट द सिग्नल फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंसेस. दीज आर इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ carrier communication. If only advantages are asked in the exam, you need to write this definition and you need to elaborate these advantages जो मैंने अभी बताया आप लोगों को. Then disadvantage of baseband communication is it can't be used for broadcasting. Very simple reason, क्योंकि ये कम डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं. सो इट कैनॉट बी यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग. इसका डिसएडवांटेज क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट डिसएडवांटेज. Large bandwidth is required. This is the major disadvantage of carrier communication. And applications, local telephone, मतलब ऑफिस में यूज करते हैं, कंपनीज में यूज करते हैं. वो लोकल टेलीफोन, वायर्ड टेलीफोन लोकल ऑफिस में, देयर दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज बेसबैंड कम्युनिकेशन विदाउट कैरियर इज यूज. दिस एप्लीकेशन इंक्लूड्स रेडियो कम्युनिकेशन, मैंने अभी बताया, एंड डीटीएस सर्विसेज, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज. सो दिस इज द कंपैरिजन. जैसे मैंने बताया कंपैरिजन के पॉइंट्स ही आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो. सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा तो ये एडवांटेजेस ये इलेबोरेट करके आप लोगों को लिखना है. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज लेट अस मूव टू द डेरिवेशन व्हिच इज रादर मोर इंपॉर्टेंट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज let us discuss this question. Derive equation for instantaneous voltage of AM wave, amplitude modulated wave. Or question can be like this: draw spectrum of AMF से again amplitude modulation का spectrum draw करना है. The answer of both the questions should remain same. पहले हमें derivation complete करना है. It's not at all lengthy derivation. Before that, let me tell you, let me repeat the things once again. जो मैसेज सिग्नल है वो आपको लॉन्गर डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिशन करना है. सो दैट यू आर मिक्सिंग दैट मैसेज सिग्नल विथ सम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल. जो दूसरा सिग्नल है, जो हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, उसको बोलते हैं कैरियर सिग्नल. सो दिस इज द डायग्राम फॉर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. मतलब जो मैसेज सिग्नल है, जो एक्चुअल सिग्नल है, जो हमें ट्रांसमिट करना है, उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. आई अज्यूम्ड अ साइनसोइडल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जिसका वैल्यू है, एम्पलीट्यूड है EM. EM is maximum amplitude. सेकंड, ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है. ऑब्जर्व द फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. ऑन दिस एक्सिस वी आर प्लॉटिंग द टाइम पीरियड. तो ये गैप दो सिग्नल के बीच का कम है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका फ्रीक्वेंसी कम है. दिस इज लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जिसको बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. उसको सुपर इम्पोज करना है कैरियर सिग्नल के साथ जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है. अगेन आई हैव अज्यूम्ड साइनसोइडल हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल. दिस इज क्लियर कट एजम्पशन. इसको जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वोल्टेज है दैट इज डिनोटेड बाय EC. बहुत सिंपल है. ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, मतलब मैसेज सिग्नल है, इसलिए EM. दिस इज कैरियर सिग्नल, सो नोटेशन इज EC. C स्टैंड्स फॉर कैरियर सिग्नल. अगर ये सुपर इम्पोज करोगे तो रिजल्टेंट ऐसा आ जाएगा. मतलब कैसे याद रखना है? अकॉर्डिंग टू वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड इन द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. जैसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होता है, वैसे ये कैरियर सिग्नल का भी एम्पलीट्यूड चेंज होता है. देखो, ओरिजिनल कैरियर सिग्नल है, इसका एम्पलीट्यूड फिक्स है, इट इज नॉट चेंजिंग. वेयर एज एम्पलीट्यूड ऑफ दिस सिग्नल इज चेंजिंग कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. इसका एम्पलीट्यूड अपर लेवल एंड लोअर लेवल्स आर फिक्स्ड. अगर ये सुपर इम्पोज करोगे तो इसका जो एम्पलीट्यूड है, कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है, दैट विल चेंज
अकॉर्डिंग टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड जैसे चेंज होता है उस हिसाब से कैरियर सिग्नल का भी एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा. दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज एएम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. 3 टाइप्स होते हैं, एक है एम्पलीट्यूड, एक है फ्रीक्वेंसी, थर्ड है फेज. मतलब जो चेंज होता है उसी नाम से उसको बुलाते हैं. लाइक इन दिस केस एम्पलीट्यूड इज चेंजिंग, सो वी विल कॉल इट एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. अगर कैरियर का फ्रीक्वेंसी चेंज होता है तो वी वुड हैव कॉल्ड इट एज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. अगर कैरियर का फेज चेंज होता है तो वी वुड हैव कॉल्ड इट एज फेज मॉड्यूलेशन. प्रेजेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. सो व्हाट आई सेड, जैसे ये एम्पलीट्यूड इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड चेंज होता है मैसेज सिग्नल का, मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, उस हिसाब से कैरियर का भी एम्पलीट्यूड चेंज होता है और रिजल्टेंट वेवफॉर्म ऐसे आता है. इसको बोलते हैं एनवलप. दिस इज लोअर एनवलप और बॉटम एनवलप, दिस इज टॉप एनवलप और अपर एनवलप. तो एनवलप के बीच में ये ऐसे वेरिएशन हो जाता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. नाउ derivation, this is most important part. I have written 2 equations, rather 3 equations. The first 2 equations, first equation is EC. It is the equation for what I said कि हमने एक साइन वेव एज्यूम किया है. तो बेसिक साइन वेव का इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग? ऐसे लिखते हैं a sin ओमेगा t, ऐसे नॉर्मल नोटेशन में. इट इज EC, मतलब हमें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का इक्वेशन लिखना है. सो इट इज EC, that is this value. कैरियर का लिखना है हमें. नेचर साइनसोइडल है, इट्स फ्रीक्वेंसी इज साइन ओमेगा सी टी. सी स्टैंड्स फॉर कैरियर. सेम वे अगर मुझे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का इक्वेशन लिखना है, अगेन आई हैव अज्यूम्ड इट एट अ साइन वेव. डायग्राम में देखो इसका एम्पलीट्यूड EM है, सो इट इज EM साइन ओमेगा MT. ये EM है, मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का है, इसलिए बेस में EM यूज किया है. हमें डिराइव क्या करना है? वी वांट द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. मतलब ये सुपर इम्पोज करने के बाद जो इक्वेशन आएगा इट्स स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इट विल बी अगेन अ साइन वेव, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड कुछ ए रहेगा. दैट वी डोंट नो, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. सो ए साइन ओमेगा सी टी. व्हाई साइन ओमेगा सी टी? बिकॉज जैसे मैंने बताया कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, सो इट इज ए साइन ओमेगा सी टी. मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड जैसे चेंज होता है वैसे कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज होता है. सो दीज आर द 3 basic equations which I have written. अब what I said, हमें ये इक्वेशन डिराइव करना है. इक्वेशन नंबर 3, इसमें पहले ए कैलकुलेट करते हैं. ए मतलब एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड मतलब ये सुपर इम्पोज होने के बाद, मिक्सअप होने के बाद जो एम्पलीट्यूड आएगा, ये जो एनवलप आ रहा है, इसका एम्पलीट्यूड का वैल्यू कैलकुलेट करना है. सो दिस एम्पलीट्यूड इज बेसिकली EC प्लस EM. देखो, यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज. EM मतलब पूरा ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एज इट इज, क्योंकि इसके हिसाब से कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है. वेयर एज EC इज फिक्स्ड, सो EC एज इट इज. ये जैसे चेंज होता है उस हिसाब से EC में ऐड होके EC का वैल्यू चेंज होगा. सो आई हैव केप्ट EC एज इट इज प्लस EM बिकॉज EM इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. इसके हिसाब से EC चेंज हो रहा है, सो EC इज फिक्स्ड प्लस EM. दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ एम्पलीट्यूड A. अब क्या करना है? EM का वैल्यू, मतलब पुट इक्वेशन 2. लेट अस गिव सम इक्वेशन नंबर, से इक्वेशन नंबर 4. पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 4, मतलब EM का ये वैल्यू यहाँ पे हमें पुट करना है. सो इक्वेशन ऑफ A बिकम्स EC प्लस EM साइन ओमेगा MT. सिंपली आई हैव पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 4. EM का वैल्यू मैंने पुट किया है. Say equation number 5. There is one term which is known as modulation index, and it is denoted by M, and that is defined as EM upon EC. Simple है. दोनों का, ये दो एम्पलीट्यूड का रेशियो ले लोगे तो जो आंसर आएगा दैट इज नोन एज M, दैट इज डिनोटेड बाय M. सो M is EM upon EC. I want to obtain equation in terms of M, so let us rearrange the equation like this. मैं ऐसे लिखता हूँ EC plus, I will write new equation like this. I will add one term EC and this original term as it is EM sin omega MT. अब देखो मैथमेटिकली मैंने एक EC टर्म एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो इसको कैंसिल करने के लिए EC से डिवाइड भी करना पड़ेगा. दैट मीन्स मेक इट सिंपल. फॉर द सेकंड पार्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय EC. दैट्स व्हाट आई हैव रिटन. मैथमेटिकली इट रिमेन्स सेम. अब कैसे सोचना है?
I want this answer to be in terms of m. M क्या है? em upon ec. So next equation I will write it like this: a is equals to ec, ये पहला term as it is, plus this em upon ec मतलब m. So I will first write m into ec. ये ec as it is लिखा मैंने, ये ec, em upon ec के बदले में m पुट किया. This ec I have written it as it is into sin omega mt. Therefore a, now I can take ec common from this, so it can be written as ec into 1 plus m sin omega mt. ये इक्वेशन आ गया, इक्वेशन ऑफ एम्पलीट्यूड. लेट अस गिव सम नंबर, से इक्वेशन नंबर 6. अब क्या करना है? वी वांट टू obtain the equation of EAM जिसमें A लगता था. So I have separately calculated, just to avoid the confusion, I have separately calculated value of A. अब क्या करना है? ये equation 6 मतलब ये A का जो value है, I need to put this value, ये पूरा value I need to put it in equation 3. So let us rewrite the new equation. Equation 3 में put करना है. I will rub out the unnecessary things. अब क्या करना है? Put value of a, that is put it in equation 3. So next equation of EAM will be, in place of a I will be putting this entire term EC in the bracket 1 plus m sin omega mt into this term will be as it is into sin omega ct. So this is the equation which I have got after putting the value of a in equation 3. Let us simplify this equation. So this equation can be written as, अब जैसे देखो EC और sin omega ct से पूरे इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट टर्म 1 है, so it becomes EC sin omega ct प्लस सेकेंड टर्म ये है पूरा m sin omega mt, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे. सो आई विल राइट इट लाइक दिस, m into EC मतलब EC और इस टर्म से भी मल्टीप्लाई करना है, into sin omega mt into sin omega ct. अब ये स्टेज पे we need to use one mathematical identity or rather trigonometric identity to simplify this calculation. So this trigonometric identity is, consider this term only. I will write this trigonometric identity: sin A sin B is equals to 1/2 cos of A minus B minus cos of A plus B. ये आइडेंटिटी मुझे यूज करना है. यहाँ पे I am talking about only this part. Remaining terms are as it is. I want to simplify only these terms. यहाँ पे A है, here I will write it separately. Here A मतलब ओमेगा mt, B मतलब देखो टर्म क्या है, साइन A इंटू साइन B. A मतलब ओमेगा mt, B मतलब ओमेगा ct. So let us put the values. Therefore new equation will be EAM which is equals to EC sin omega ct, ये टर्म as it is लिखा मैंने, प्लस MEC, ये भी टर्म एज इट इज लिखा. इसके बदले में सिर्फ ये टर्म के बदले में, इसके बदले में मुझे आइडेंटिटी यूज करना है. इट इज 1/2, तो मैं टू यहाँ पे लिखता हूँ. इट इज 1/2 इन द ब्रैकेट cos A माइनस बी. अब देखो A माइनस बी मतलब सेपरेटली अगर हम लोग लिखना चाहेंगे, A माइनस बी विल बी ओमेगा mt माइनस ओमेगा ct which can be written as omega m minus omega c. T is taken common, so I will write it like this: omega m minus omega c into t minus cos A plus B. अगर A plus B लिखना है तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, so this becomes plus. So it is minus cos omega m plus omega ct. So this is the equation which I got after simplifying, after using the trigonometric identity. Now one more important thing, जैसे ये मैथमेटिकली हमें ये टर्म आया ओमेगा m माइनस ओमेगा सी टी. यू नो द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. अगर हम लोग, हमारे पास cos ऑफ माइनस थीटा है विच इज सेम एज cos थीटा,
ये जस्ट मतलब लॉजिकली रिप्रेजेंट करने के लिए व्हाट वी नोज ओमेगा सी इज कैरियर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। कैरियर का फ्रीक्वेंसी हमेशा ज्यादा रहता है कंपेयर टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इसलिए वी नो द मैथमेटिकल आइडेंटिटी कॉस ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा, सो डायरेक्टली वी कैन इंटरचेंज द साइंस। मतलब ये मैं ऐसे लिख सकता हूं ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। एग्जाम में क्लिक कैसे होगा, बहुत सिंपल याद रखना है, कैरियर फ्रीक्वेंसी का, कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी हमेशा ज्यादा होना चाहिए। सो व्हाटएवर यू आर गेटिंग यू कैन वेल इंटरचेंज इट बिकॉज आई हैव द आइडेंटिटी कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। नाउ लेट अस राइट द फाइनल इक्वेशन एज फर्स्ट टर्म एज इट इज em sin omega ct plus ये I will write this term second term as MEC by 2 cos omega c minus omega m into t। हाँ ये t भी बाहर है यहाँ पे, माइनस ये टर्म ऐसे लिखेंगे MEC by 2 cos omega m plus omega c in the bracket t। So this is the final equation of instantaneous amplitude for amplitude modulated wave। अब देखो स्पेक्ट्रम कैसे ड्रॉ करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एक्चुअली वी हैव डन द कैलकुलेशंस इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, वी नो द बेसिक इक्वेशन ओमेगा इज 2 पाई एफ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी। तो जैसे यहाँ पे टर्म आ रहा है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम विच इज इक्विवेलेंट टू एफ सी माइनस एफ एम। सिमिलरली ये जो टर्म आ रहा है ओमेगा एम प्लस ओमेगा सी विच इज इक्विवेलेंट टू एफ एम प्लस एफ सी, और दैट मीन्स एफ सी प्लस एफ एम, बट एट द सेम थिंग बिकॉज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या मतलब क्या है, इस एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी प्लॉट करना है एफ, और हमने डेरिवेशन किया ओमेगा के टर्म्स में, ओमेगा इज वेल रिलेटेड टू एफ, वी नो द बेसिक फॉर्मूला ओमेगा इज 2 पाई एफ। सो जो ओमेगा का वैल्यू है वही सेम हम एफ के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो फर्स्ट टर्म दिस टर्म इज एट एफ सी माइनस एफ एम। यहाँ पे जैसे ये सेंटर ये ओरिजिन है, यहाँ पे मैंने ई सी ड्रॉ किया, ई सी इज व्हाट फर्स्ट टर्म, इसका वैल्यू है ई सी। दिस इज द ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। पहला टर्म जो है दैट इज एट ई सी विच इज ई सी, सो ये ओरिजिन पे ड्रॉ किया है बिकॉज देर इज नो टर्म रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। शिफ्ट मतलब क्या, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम प्लस ओमेगा सी, ऐसे इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। इसमें ऐसा कोई टर्म नहीं, कांस्टेंट ओमेगा सी का टर्म है, इसलिए सेंटर पे ड्रॉ किया जिसका वैल्यू ई सी लिखा है बिकॉज इट्स एम्पलीट्यूड इज ई सी। ये जो टर्म है इट इज एट एफ सी माइनस एफ एम हुज एम्पलीट्यूड इज एम सी बाई 2, दैट्स व्हाट आई हैव रिटन। थर्ड टर्म जो है विच इज एट एफ सी प्लस एफ एम हुज एम्पलीट्यूड इज एम सी बाई 2, अदर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वैल्यू एम सी बाई 2। अब ये जो टर्म है इट इज एट लोअर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए इसको बोलते हैं एल एस बी, लोअर साइड बैंड। ये मेन बैंड है, EC रिप्रेजेंट द मेन बैंड। ये जो दो रिमेनिंग डायग्राम्स है जिसको बोलते हैं साइड बैंड, दिस इज एट लोअर साइड, सो इट इज LSB लोअर साइड बैंड, दिस इज higher or upper side band, USB upper side band. So this is the frequency spectrum of amplitude modulated wave. Next derivation is, question is derive expression of power for AM wave. Same diagram refer करना है। Before I forget, ये जो बैंडविड्थ का वैल्यू ये 2FM कैसे लेकर है, बेसिकली बैंडविड्थ इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। हायर फ्रीक्वेंसी कितना है अपने पास FM प्लस FC प्लस FM, सो FC प्लस FM माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी कितना है FC माइनस FM माइनस इन द ब्रैकेट FC माइनस FM, तो ये माइनस FC हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सो FC कैंसिल हो गया, FM प्लस FM इट इज 2FM। कम बैक टू दिस डेरिवेशन, हमें पावर का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। वी हैव द बेसिक फॉर्मूला ऑफ पावर, इट इज एम्पलीट्यूड स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। बेसिक फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन R, दैट इज वोल्टेज स्क्वायर अपॉन R। आई हैव रिटन इट एज एम्पलीट्यूड स्क्वायर अपॉन R। अगर मुझे कैरियर का पावर कैलकुलेट करना है, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, EC स्क्वायर अपॉन R। अब एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, wherever I am writing EC, it means it is the maximum value. Recall the things, हमें RMS के टर्म्स में डेरिवेशन करना है। So if you have maximum value, to convert it into RMS,
डिवाइड दैट वैल्यू, मतलब ऐसे याद रखना है, मैक्सिमम वैल्यू जो कोई है उसको √2 से डिवाइड करना है. सो वी नीड टू कैलकुलेट, डू द कैलकुलेशंस इन टर्म्स ऑफ आरएमएस. तो ये जो वैल्यू है ईसी का, इसके बदले में मैंने लिखा ईसी अपॉन √2. मतलब सिंपल याद रखना है, ईसी इज मैक्सिमम वैल्यू. बेसिक फॉर्मूला ये है ईसी स्क्वायर अपॉन आर. ईसी मैक्सिमम वैल्यू, उसको आरएमएस में कन्वर्ट करने के लिए इसको √2 से डिवाइड कर लो. ब्रैकेट स्क्वायर, स्क्वायर रिमेन्स एज इट इज, डिवाइडेड बाय ये आर, दिस रिमेन्स एज इट इज. सो सिंपली इट बिकम्स ईसी स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये आर इट विल बी रिटन एज इट इज. तो ये वैल्यू आ गया पीसी, दैट इज कैरियर पावर. अब देखो कैरियर का एम्पलीट्यूड ईसी था, इसलिए डायरेक्टली हमने ये फॉर्मूला से निकाला. लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड का ये जो एम्पलीट्यूड है इट इज सेम, इट इज MEC अपॉन 2. सो if I want to write equation of power for LSB which is same as equation of power for USB, it can be written as, इसका एम्पलीट्यूड कितना है MEC अपॉन 2. ये एज इट इज लिखा मैंने, डिवाइडेड बाय √2 करना है. वाई डिवाइडेड बाय √2? क्योंकि हमें ये एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम है उसको आरएमएस में कन्वर्ट करना है. ये टोटल एम्पलीट्यूड होगा आरएमएस में, इसका स्क्वायर लेना है. लुक एट द फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय आर. So let us simplify it. It can be written as m square EC square upon, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √2 का 2 हो जाएगा, 4 into 2 8R. So this is the value of power at LSB as well as power at USB. Now total power, that is PT, which is equals to PC, carrier power plus PLSB प्लस PUSB. मतलब सब बैंड का एडिशन करेंगे तो जो आंसर आएगा दैट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ टोटल पावर. आई हैव द वैल्यू ऑफ PC, दैट इज EC स्क्वायर अपॉन 2R प्लस PLSB इज m स्क्वायर EC स्क्वायर अपॉन 8R प्लस ये इसका भी वैल्यू सेम है, m स्क्वायर EC स्क्वायर अपॉन 8R. Now what I want everything in terms of RMS power, in terms of PC का इक्वेशन क्या है, बेसिक इक्वेशन EC स्क्वायर अपॉन 2R. सो लेट अस मॉडिफाई दिस टर्म, मतलब सिर्फ ये टर्म कंसिडर कर लो. सो इफ आई हैव दिस टर्म m स्क्वायर EC स्क्वायर अपॉन 8R, ये हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. वी वांट इट लाइक दिस, EC स्क्वायर अपॉन 2R. तो m स्क्वायर एज इट इज रहेगा. आई वांट EC स्क्वायर अपॉन 2R, सो आई विल बी राइटिंग इट लाइक दिस, m स्क्वायर EC स्क्वायर अपॉन 2R into 4. It is same as 8R. So same equation, I will write it over here. The same equation can be written as total power PT is equals to EC square upon 2R plus, अब देखो ये मैंने ऐसे मॉडिफाई किया है मैथमेटिकली, इट इज MEC स्क्वायर अपॉन 2R इंटू 4 प्लस MEC स्क्वायर अपॉन 2R इंटू 4. So next step is pretty simple. Now take EC square upon 2R common, ये कॉमन ले लेंगे. So this becomes 1 plus m. One more thing, this is m square, so this is also m square, this is also m square, so it is m square. Then I have taken EC square upon 2R common, m square upon 4 plus m square upon 4. Now this becomes m square upon 4 plus m square upon 4. It becomes 2m square upon 4, that is m square upon 2. So next step can be written as PT is equals to, now this term EC square upon 2R means value of PC, so I will write it PC in the bracket 1 plus this addition is m square upon 2, 1 plus m square upon 2. So this is the final equation of the power in case of amplitude modulated wave. This is the total power in terms of carrier power PC.
So dear students, I have completed all the derivations required for amplitude modulated signal, as well as I have explained you the comparison and the theory questions. So that's it for today's session. So in the next video I will explain you how to solve, rather we will solve numericals related to amplitude modulated wave. So thank you, thanks a lot.